फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज इब्रार अहमद। आज जो हम डाउन का एडिटोरियल डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है तवारीस एंड। इस एडिटोरियल में हम ये डिस्कस करेंगे क्या अमेरिका अलकायदा के लीडर को ख़त्म करने के बाद अलकायदा को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर चुका है। क्या अलकायदा ने अपने पंजे पहले से ज़्यादा मजबूत कर लिए हैं, या क्या अलकायदा दोबारा अमेरिका पर हमला करने के लिए अफगानिस्तान में तैयारी कर रहा है। इन तमाम सवालात का इस एडिटोरियल में जवाब जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। Ayman al-Zawahiri, who was reportedly eliminated by an American drone strike in a quiet Kabul neighborhood अर्ली संडे मॉर्निंग। इतवार की सुबह को काबुल में अमेरिकी ड्रोन हमले में ऐमन अल-ज़वाहिरी मारा गया। was one of the most recognizable faces in the world of transnational jihad, जो जिहादी दुनिया में बेहद मशहूर था। Yet the Al-Qaeda Zawahiri, led after his boss Osama bin Laden killing, had lost much of its bite and had been suppressed by even more bloodthirsty concerns such as the self-styled Islamic State group। उसामा बिन लादेन की मौत के बाद इसका परचम अल-ज़वाहिरी और चंद इस्लामिक स्टेट ग्रुप के पास चला गया था। The Egyptian doctor turned terrorist is believed to have been one of the key ideologists of Al-Qaeda। ये ख्याल किया जाता है कि वो एक मिस्री डॉक्टर के बाद एक दहशतगर्द बना। Meanwhile, according to a report by Arab News, Ayman al-Zawahiri, the chief of Al-Qaeda, has died in Afghanistan. The 69-year-old Egyptian national is said to have died of natural causes. The report has been filed based on sources in Pakistan and the Afghan media, and it comes just days after news of al-Zawahiri's passing made the rounds on social media. Remember, al-Zawahiri was the leader of the Al-Qaeda since 2011. He succeeded Osama bin Laden. Al-Zawahiri was last seen in a video released on the anniversary of the 9/11 attacks. His death, if the reports come out to be accurate, will open up a leadership vacuum within the Al-Qaeda. Why is that? Because two of al-Zawahiri's successors, Hamza bin Laden and Abu Muhammad al-Masri, were also killed recently. However, significant as it is, Zawahiri's killing should not be seen as a great victory against terrorism। हमें अल-ज़वाहिरी की मौत को एक फतह के तौर पर नहीं मनाना चाहिए, mainly because क्योंकि of the largely dormant nature of Al-Qaeda as well as the presence of even more violent group in Afghanistan। क्योंकि अफगानिस्तान में अल-कायदा के साथ साथ इससे भी ज्यादा खतरनाक ग्रुप मौजूद हैं। This mission was carefully planned, rigorously minimized the risk of harm to other civilians. And 1 week ago, after being advised that the conditions were optimal, I gave the final approval to go get him. And the mission was a success. The killing also raises questions about the Afghan Taliban's commitment to not host foreign terrorists। इस कत्ल से अफगानिस्तान पर गैर मुल्की दहशतगर्दों की मेजबानी करने के भी सवालात उठते हैं। After the US had withdrawn from Afghanistan last year, the de facto Afghan rulers in Kabul and promised that their land will not be used against others। अमेरिकी इनखला के वक्त उन्होंने ये दावा किया था कि उनकी सरजमीन कभी भी किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। Yet the fact that the Al-Qaeda chief was found and targeted in a Kabul safe house, लेकिन हकीकत के अंदर अल-कायदा के सरबराह को अफगानिस्तान में एक महफूज जगह पर पाया गया। Earlier intelligence report had indicated that Zawahiri was operating in Afghanistan unhindered। Reports के मुताबिक वो आज़ादाना वहाँ काम कर रहा था। Expose the Taliban promise as hollow। It seems the Taliban have learned nothing from history, as their earlier regime was also dislodged for hosting Al-Qaeda। ये तालिबान के वादे को भी खोखला करता है, यानी उन्होंने कभी अपनी हिस्ट्री से सबक नहीं सीखा, क्योंकि उनकी पहली भी हुकूमत अल-कायदा ही की वजह से खत्म की गई थी।
Moreover, the global presence of groups even more fanatical than Al-Qaeda shows that current counter-terrorism policies are not yielding the desired result. मजीद ये कि अलकायदा से ज़्यादा जुनूनी ग्रोह का वहाँ मौजूद होना ये साबित करता है कि वर्ल्ड की पॉलिसियाँ किस कदर कमज़ोर हैं टेररिज्म के मुखालिफ. While there is no doubt a military aspect to counter-terrorism and violent militants cannot be allowed to operate freely, many of the underlying issues that fuel terrorism have not been addressed. हम फ्री हैंड ऑपरेशन की इजाजत तो नहीं दे सकते, लेकिन ये मसला भी तो अब हल तलब है. These include continued indecisions on the Kashmir and Palestine question, occupation of Muslim lands by foreign power, as well as authoritarian regime that holds sway over most Muslim states. दहशतगर्दी को हवा देने वाले इशू कश्मीर और फलस्तीन का तनाज़ा भी हल ना करना हमारी कमजोरी है. As per some accounts, Zawahiri turned to extremism after he was tortured in Egyptian prisons. ज़वाहिरी ने भी जेल में तशद्दुद का निशाना बनने के बाद ये राह ली. Until these core issues are addressed, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा, many more Zawahiris will continue to emerge. तो बहुत ज़्यादा और ज़वाहिरी इस दुनिया में मौजूद होंगे. वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में अब हम वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले जो हमारा वर्ड है एलिमिनेटेड. एलिमिनेटेड मीन खत्म कर देना, तबाह कर देना, बर्बाद कर देना या डिस्ट्रॉय. रिकॉग्नाइजेबल काबिल शनाख्त, रिकॉग्नाइजेबल काबिल शनाख्त. ट्रांसनेशनल बैनुल-अक़वामी, ट्रांसनेशनल बैनुल-अक़वामी. नेक्स्ट है आइडियोलॉजीज नजरिया, थिंकिंग सोच, आइडियोलॉजीज नजरिया. रिवाइज करते हैं. एलिमिनेटेड खत्म कर देना, रिकॉग्नाइजेबल काबिल शनाख्त, ट्रांसनेशनल बैनुल-अक़वामी, आइडियोलॉजियस नजरिया. नेक्स्ट पैराग्राफ में वायलेंट पुरतशद्दुद, वायलेंट मीन पुरतशद्दुद, वायलेंट पुरतशद्दुद. अनहिंडर्ड बिला रोक टोक, अनहिंडर्ड बिला रोक टोक, अनहिंडर्ड बिला रोक टोक. डिसलॉज्ड बेदखल, डिसलॉज्ड बेदखल. अनहिंडर्ड बिला रोक टोक, डिसलॉज्ड बेदखल. नेक्स्ट है इनडिसीजन फैसला ना करना, इनडिसीजन फैसला ना करना, इनडिसीजन फैसला ना करना. एक्सट्रीमिज्म इंतहा पसंद होना, एक्सट्रीमिज्म इंतहा पसंद. टॉर्चर्ड तशद्दुद, टॉर्चर तशद्दुद, टॉर्चर तशद्दुद. वीडियो के इस पार्ट में हम ग्रामर को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा ग्रामर का स्ट्रक्चर यहाँ यूज हुआ है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो ग्रामर का स्ट्रक्चर है वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट. उसका जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू और डज प्लस V1. हेल्पिंग वर्ब को पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर यूज नहीं करते, प्रेजेंट इंडेफिनेट में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में इस्तेमाल करते हैं. ये यहाँ यूज हुआ है. द किलिंग आल्सो एज अ सब्जेक्ट रेजिज V1 क्वेश्चन अबाउट द अफगान तालिबान कमिटमेंट, कम्प्लीमेंट है. उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस. अगर कोई काम जारी हो तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस इस्तेमाल किया जाता है. उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एमआर प्लस V1 प्लस ING. द करंट काउंटर टेररिज्म पॉलिसीज, ये सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है और नोट नेगेटिव सेंटेंस के लिए है यील्डिंग द डिजायर्ड रिजल्ट, यील्डिंग V1 प्लस ING है. जो थर्ड सेंटेंस का स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट. अगर कोई काम हाल में मुकम्मल हो चुका है तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं. इसका जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब प्लस V3 यूज होती है. तो इट सीम्स द तालिबान, ये सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, लर्न्ड V3 है. और नेक्स्ट जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है मॉडल वर्ब, ये एबिलिटी पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं. सब्जेक्ट प्लस कैन कुड शुड मस्ट प्लस V1 इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है.
जैसे इट इज ज़हवारीज किलिंग शुड नॉट बी सीन एज अ ग्रेट विक्ट्री अगेंस्ट टेररिज्म। इसके अंदर ज़हवारीज किलिंग सब्जेक्ट शुड मॉडल वर्ब नॉट नेगेटिव के लिए बी सीन V1 है। उसके बाद सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है जो कि है सब्जेक्ट और साथ जो V1 है इज एम आर वाज वर हैज हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट है। ये एमन अल ज़हवारी हु वाज जो कि था रिपोर्टेडली एलिमिनेटेड जिसकी डेथ को रिपोर्ट किया गया है। उसके बाद है संडे मॉर्निंग वाज वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल फेस इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रांसनेशनल जिहाद। इसके बाद ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ यूज हुआ है। अलकायदा चीफ सब्जेक्ट वाज मेन वर्ब फाउंड एंड टारगेटेड इन द काबुल सेफ हाउस कॉम्प्लीमेंट है। regime was also dislodged for hosting Al-Qaeda, यहाँ भी was main verb है और बाकी complement है। He was tortured in Egyptian prisons, इसके अंदर ही subject है, was main verb है, tortured in Egyptian prison आगे complement है। उसके बाद जो sentence का structure है वो है past perfect का passive voice का sentence structure, जिसके अंदर subject और साथ helping verb had की बजाय हैड बीन हो जाएगी और साथ V3 है, ये यहाँ यूज हुआ है। हैड बीन सप्रेस्ड बाय इवन मोर ब्लड थर्स्टी कंसर्न। इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज हुआ है। हैड बीन जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, सप्रेस्ड V3 है और बाय आगे सब्जेक्ट है। उसके बाद जो लास्ट है पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस स्ट्रक्चर वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस V3 है, ये यहाँ यूज हुआ है। द डिफेक्ट ऑफ अफगान रूलर्स इन काबुल सब्जेक्ट हैड हेल्पिंग वर्ब प्रोमिस्ड V3 है। और उसके बाद अलकायदा ज़हवारी लेड आफ्टर हिज बॉस उसामा बिन लादेन किलिंग सब्जेक्ट हैड हेल्पिंग वर्ब लॉस्ट मच ऑफ इट्स बाइट आगे V3 इस्तेमाल हुई है।